शलोम। मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ द ट्रायम्फ ऑफ ग्रेस ओवर सिन। रोमियो की पत्री 6 अध्याय उसका पहले पद से 14 पद तक। पाप के लिए मृतक, मसीह में जीवित। और यहाँ लिखा है, तो क्या कहें, क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? पौलुस लिखता है, कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएं? जब हम पाप के लिए मर चुके तो हम उसमें कैसे रह सकते हैं? क्योंकि जिन्होंने भी मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया है, उन्होंने उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया है। और जब यीशु मसीह की मृत्यु के साथ हमने अपने आप को दिया है, ऐसा विश्वास हमें करना है, क्योंकि लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि जब हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, उसके मृत्यु का बपतिस्मा लिया, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। So what do we do then? Do we persist in sin so that God's kindness and grace will increase? What a terrible thought! We have died to sin once and for all. As a dead man passes away from his life, so how could we live under sin's rule a moment longer? Or have you forgotten that all of us who were immersed into union with Jesus, the Anointed One, were immersed into union with His death? Sharing in His death by our baptism means that we were co-buried with Him. हम उसके साथ गाड़े गए हैं, यीशु के साथ, so that when the Father's glory raised Christ from the dead, we were also raised with Him. We have been co-resurrected with Him so that we could be empowered to walk in the freshness of new life. मेरा सवाल है आपसे, क्या हम उस नए जीवन में हैं कि अभी भी हम पुराने मनुष्य तब को अपने साथ लिए, अपने हृदय में लिए बैठे हैं, या अपने साथ उसको लेके चल रहे हैं? अगर है तो होना नहीं चाहिए। For since we are permanently grafted into Him, to experience a death like His, then we are permanently grafted into Him to experience a resurrection like His and the new life that it imparts. Could it be any clearer that our former identity is now and forever deprived of its power? For we were co-crucified with Him to dismantle the stronghold of sin within us. This is absolute truth. So that we would not continue to live one moment longer submitted to sin's power. Obviously, a dead person is incapable of sinning. And if we were co-crucified with the Anointed One, we know that we will also share in the fullness of His life. And we know that since the Anointed One has been raised from the dead to die no more, His resurrection life has vanquished death, and its power over him is finished. For by His grace He died to sin's power once and for all. But He now lives continuously for the Father's pleasure. So let it be the same way with you, since you are now joined with Him. You must continue view yourself as dead and unresponsive to sin's appeal, while living daily for God's pleasure in union with Jesus, the Anointed One. So sin's reign is over. Sin is not reigning over us now. हम पाप की प्रभुता में नहीं हैं। पाप हम पर प्रभुता नहीं कर सकता अगर हम इन सत्य के वचनों को लेंगे। Sin is dethroned monarch. So you must no longer give it an opportunity to rule over your life, controlling how you live and compelling you to obey its desires and cravings. So then, refuse to answer its call to surrender your body as a tool for wickedness. Instead, passionately answers God's call
to keep yielding your body to Him as one who has now experienced resurrection life. You live now for His pleasure, ready to be used for His noble purpose. Reminder is given to us by Paul every moment when we are reading the epistles. So here, remember this: sin will not conquer you, for God already has. You are not governed by law, but governed by the reign of the grace of God. So God bless you. मैं हिंदी में से एक बार पढ़ती हूँ ताकि आप और अच्छे से इसको अंडरस्टैंड करें। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में एक साथ जुट गए हैं, तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य तब उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दास्तव में ना रहें, क्योंकि जो मर गया वह पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास यह है कि उसके साथ जिएंगे भी, क्योंकि यह जानते हैं कि मसीह मरे हुओं में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की, क्योंकि वह जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। ऐसा ही, यह हम सब के लिए आज्ञा है, ऐसा ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य ना करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो, और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। ऐसा नहीं है कि हम पर बहुत अनुग्रह हो रहा है कि हम पाप करते चले जाएं, बल्कि हमें ये मानना है कि हमने अपने आप को पाप के लिए तो मरा हुआ समझना है। एक तरीके से अगर मैं जनरली बोलूं सिंपल लैंग्वेज में, कि हमें जो हमारा जो फ्यूनल हुआ है पुराने मनुष्यत्व का, हमने उस फ्यूनल को पूरी तरह कर दिया है। अब हम नए सिरे से जीवते यीशु मसीह में हैं और हमें उसी में बने रहना है, और हम पर पाप की प्रभुता हो नहीं सकती, क्योंकि यीशु मसीह का करा हुआ काम अधूरा नहीं है, उसने पूरा काम किया है। हमें मानना है, विश्वास करना है, तभी हम उसकी जीवित जीवन में, उस आशा में, उस रेजरेक्टेड लाइफ में हम उसके साथ जी सकते हैं। अगर हमारे दिमाग में अभी भी कोई डाउट है कि हम अभी भी सिन में हैं, तो सबसे उत्तम बात यह है कि हमें वचन को मानना है कि पाप के लिए हम मृतक हो चुके हैं, मसीह में हम जीवित हैं नए सिरे से, और उस नए जीवन सी की चाल में हमें रहना है, उस नएपन में रहना है। सो गॉड ब्लेस यू ऑल, बी इन दिस न्यू लाइफ एंड हैव अ ब्लेस्ड न्यू लाइफ इन क्राइस्ट। गॉड ब्लेस यू ऑल। शलोम।